Hello everyone, my name is Megha. In this video, we are going to see class 3rd Maths chapter 12 Can We Share? I will be showing some extra questions from the lessons and their solution. Now let's start. Our first question is complete the following as shown is the example. Here 15 divided by 2 is equal to 30 and 13 divided by 2 is equal to 15 and 15 divided by 30 is equal to 2. There are two methods to do this sum. First is we will do division. 2 ones are 2. 3 minus 2 is 1 and we keep 0 down and 2 5s are 10. Okay, so the answer is 15 and 15 divided by 30. So 15 divided by 30, so 15 to the 30. And the next method is here what digit is given? 10 multiplied by 2 is equal to 20. Here 20 is written and 2 also is written. What is not written here? What is missing? Here 10 is missing. Next is 20 divided by 10. What is missing here? Here 2 is missing. Now we will see our next question. 15 multiplied by 2 is equal to 100. So 100 divided by 15 is equal to 2. And 100 divided by 2. 2 is missing here. And 14 multiplied by 2 is equal to 80. So 2 we will write here and here 40. Next is 4 multiplied by 7 is equal to 28. So 4 7s are 28 or 7 4s are 28. Here 120 divided by 4. So 120 divided by 4. So 4 3s are 12. We keep 0 here. The answer is 30. Like this we also do 30 divided by 120 is equal to 40. Then our next question is filling the blanks. So 7 and the box is given here and 56. So we call the table of 7. 7 is a 56. Here 20 is given, so 5 4s are 20. 81 is given, so 9 9s are 81. And here we do simply multiply. 6 3s are 18. 5 2s are 10 and 3 8s are 24. Now we will see our next question. Answer the following. What number should be multiplied by 7 to get 49? वो पूछ रहा है कि 7 को 49 कौन से नंबर मल्टीप्लाइड करने से 7 टू गेट 49. तो हम अगर मेथड से करके देखें तो 49 7 7 are 49. तो आंसर क्या है? आंसर है 7. नेक्स्ट है a packet contain 8 stamp card. Final the total number of stamp card is 9 such packet. तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 8 9s are 72 packets. Now let's see our next question. A flower has 7 petals. How many petals are there in a 10 flower? So 7 petals multiplied by 10. Flower has 7 petals and how many petals are there in a 10 flower? So answer is 70. Next question, divide the following. तो डिवाइड कैसे करना होता है? डिवाइड मैं आपको सिखाती हूँ बच्चों. सबसे पहले हम इसे बनाएंगे सिंबल ऑफ डिविजन. Now we will write 45 here and 5 here. Now we recall the table of 5. So 5 9s are 45. Next 9 divided by 18. तो 18 को यहाँ लिखेंगे, 9 को यहाँ लिखेंगे, 9 का टेबल रिकॉल करेंगे. 9 2s are 18. जो नंबर में ये नंबर आ रहा है टेबल में जिस नंबर पे वो ऊपर लिखा जाता है. ओके. नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय 24. तो 8 3s are 24. नेक्स्ट है 54 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 9 9 6 are 54. Then 72 divided by 8. So 8 9s are 72. Then 36 divided by 6. 6 3s are 36. Now see our next question. Complete the following. Divide the number in the first row by the number in the column.
आपको क्या करना है, फर्स्ट रो के साथ इसको डिवाइड करना है, फिर सेकंड रो के साथ डिवाइड करना है, फिर थर्ड रो के साथ डिवाइड करेंगे। अगर हम 1 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 ही आएगा, 18 से करेंगे तो 18 ही आएगा, 24 से डिवाइड करेंगे तो 20, और अगर 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 12 6 नंबर पे आता है, 2 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 24 12 नंबर नहीं होता है तो 24, अगर कोई बड़ा नंबर आ रहा है तो आप उसको ऐसे भी करते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 4 नीचे उतारेंगे, 2 2 ज़ा 4, तो आ गया आंसर 12। नेक्स्ट है 3, तो 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 एंड 3 8 ज़ा 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का टेबल बोलेंगे, 2 का टेबल रिकॉल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4। आपको या तो डिवाइड करके देख लेना है, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, या हम टेबल बोलेंगे, टेबल जिस नंबर पे वो आ रहा है वो लिख देना है। तो 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आता है, 16 4 नंबर पे आता है, 12 3 नंबर पे आता है और 25 नंबर पे आता है, 4 1 ज़ा 4। ऐसे ही 1 से अगर हम करेंगे तो नंबर इटसेल्फ ही आएगा। ओके, नेक्स्ट है 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 27। यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। सिंपली आपको सिर्फ ये टेबल रिकॉल करना है, टेबल में जो नंबर पे आ रहा है वो करना है, और अगर आपको बड़ा नंबर आता है तो उसको आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। 1 2 ज़ा और 4 और 6 8, 1 से करेंगे तो नंबर वो ही आएगा सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड द फॉलोइंग यूजिंग रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। तो इसमें सबसे पहले तो आपको सब्ट्रैक्शन दिया गया है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। फर्स्ट किया हुआ है, अब 56 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो आंसर होगा 48। अब 48 माइनस 8 तो आंसर आएगा 8 माइनस 8 0, और यहाँ पे होगा 4, यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पर 3 और 32। नेक्स्ट है 32 माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे बचेगा 4 और ये 2, 14 एंड 1, आंसर इज 16। 16 minus 8 is 8, 8 minus 8 is 0. Now we will say repeated subtraction method. तो यहाँ पे आपको दिया गया है 15 डिवाइडेड बाय 5। तो आपको क्या करना है चिल्ड्रन, सबसे पहले 15 लिखना है, उसमें से आपको 5 माइनस करना है तो आंसर आएगा 10। अब 10 को वापस ऊपर लिखना है, फिर 5 माइनस आएगा तो आंसर आएगा 5, फिर 5 को ऊपर लिखना है, फिर माइनस करना है 5। हमको ये तब तक करना है जब तक 0 ना आ जाए। ओके, तो इसे कहते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। और 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, तो 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट सम देखते हैं फिर से, 24 है 8 है, तो 24 में से हम माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, फिर हम 16 में से माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, फिर हम 8 में से माइनस 8 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0, और हम डिवाइड करेंगे तो 8 3 ज़ा 24। नेक्स्ट है 18 डिवाइडेड बाय 2। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 18, 18 में से हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 16, 16 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 14 आएगा, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। हमको तब तक करना है जब तक हमारे पास 0 ना बचे। फिर 10 आएगा, फिर 10 में से माइनस 2 करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 2 करेंगे तो 6 आएगा, 6 में से 2 करेंगे तो 4 आएगा, 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा, और 2 माइनस 2 आएगा 0। अब हम डायरेक्ट मेथड से ये कर देंगे, तो 2 9 ज़ा आंसर है 9, पर हमको क्या करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 डिवाइड बाय 5। तो 25 लिखेंगे, 25 में से 5 माइनस करेंगे, आपको सिर्फ याद रखना है इस नंबर में से ये माइनस करना है जो आंसर आ रहा है, फिर उसमें से भी यही माइनस करना है। यहाँ 20 आया तो मैंने 20 यहाँ लिखा, फिर 15 आया तो 15 माइनस 5 तो 10 हुआ, 10 माइनस 5 5 हुआ, 5 माइनस 5 0 हुआ, तो 25 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 5। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी।
अब देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 डिवाइडेड बाई 1 1, और 3 का टेबल बोलेंगे, 3 के टेबल में 15 5 नंबर पे आता है, 6 के टेबल में 12 2 नंबर पे आता है, 1 के टेबल में 8 नंबर पे आता है, 2 9 ज़ा 18, 4 के टेबल में 8 2 नंबर पे आता है, 6 के टेबल में 24 4th नंबर पे आता है, 9 4 ज़ा 6 2 ज़ा 3 3 ज़ा। चिल्ड्रन, आपको अगर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन अच्छे से सीखना हो तो उसके लिए आपको टेबल बाय हार्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग। 1 liter milk cost 6 rupees. How many liter of milk can you buy for rupees 24? तो 24 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से हम अगर 24 का डिवाइड करते हैं, 6 4 ज़ा 24, तो आंसर आएगा 4। ओके, 4 liter milk we can buy from 24 rupees. Next is 2 pen cost 20 rupees. How much would Seema pay for 1 pen? तो 20 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आएगा 10। ओके, Seema pay for 1 pen is 10 rupees. Next है Rajni has 20 apple. She puts 4 each in one basket. How many basket does she use? तो 20 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे भी कर सकते हैं आप डिवाइड। ओके, तो 4 5 ज़ा 20। नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ 4 बुक इज 36। 36 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 36। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स, तो 2 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 9 आया। अब 2 बुक्स की कॉस्ट फाइंड करनी है, तो 9 2 ज़ा 18। नेक्स्ट है नेहा है 24 चॉकलेट. शी गेव 4 ईच टू हर फ्रेंड. हाउ मेनी फ्रेंड गॉट द चॉकलेट? तो 24 चॉकलेट थी. नेहा गिव हर फ्रेंड 4 चॉकलेट, देन 4 एंड 24 4 6 ज़ा 24. द आंसर इज 6. नेक्स्ट है फाइंड द क्वोशंट एंड रिमाइंडर. देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक सम करा हुआ है, तो 4 6 ज़ा 24 एंड 2. तो ये जो है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं क्वोशंट और इसको बोलते हैं रिमाइंडर. तो आपको सम करने हैं. देखिए 75 डिवाइड बाई 9. अब 9 के टेबल में 75 नहीं आता है, लेकिन 9 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर आता है जो 75 से छोटा हो? तो 9 9 से तो 81 होता है, तो वो तो बड़ा हुआ 75 से. तो 9 8 जा हम लिखेंगे 72. अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3. तो ये जो 3 बचा है इसको हम लिखेंगे रिमाइंडर, और ये जो है ये है क्वोशंट. नेक्स्ट है 41 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 41 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 6 ज़ा 36. इसमें रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 5. तो ये जो नीचे बचता है इसको हम लिखेंगे आर रिमाइंडर, और इसको क्वोशंट आपको पूरा स्पेलिंग लिखना है. अब 13 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 6 ज़ा 12 1. तो ये है आपका क्वोशंट, ये है आपका रिमाइंडर. नेक्स्ट है 23 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 डिवाइडेड बाय 23. ओके, 6 3 ज़ा 18, 23 माइनस 18 5. ऐसे करके माइनस करना है. ओके, मेथड से. तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका रिमाइंडर है. नेक्स्ट है 8 डिवाइडेड बाय 76. तो 8 9 ज़ा 72. यहाँ पे बचेगा 4. ये आपका रिमाइंडर है, ये आपका क्वोशंट है. नेक्स्ट है 26 डिवाइडेड बाय 7. तो 7 3 ज़ा 21. चिल्ड्रन, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको छोटा नंबर लेना है. ओके, 7 के टेबल में 26 से जो छोटा नंबर आ रहा है, बड़ा नंबर आया नहीं लेना है. 7 4 ज़ा 28 होता है, तो 28 हम नहीं ले सकते. 7 3 ज़ा 21 लेंगे. फिर रिमाइंडर हमारा बचेगा 5. 2 माइनस 5 2 0. तो ये है क्वोशंट, ये है रिमाइंडर. तो चिल्ड्रन, ये आपकी वर्कशीट है. मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी. ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने हाफ सॉल्यूशन दे दिया है. अब इसका पार्ट 2 मैं आपको बाद में
भेजूंगी। ओके, थैंक यू। तो आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।